Hello everyone, welcome to another success story session on EduTap. And today with us we have Mr. Abhinav, who has been recently selected as a NABARD Grade A officer in the computer stream. So welcome to the platform, Mr. Abhinav, and many heartiest congratulations to you for becoming the NABARD Grade A officer. Thank you. Thank you very much. So, guys, today Mr. Abhinav is having a very interesting story of his of becoming the NABARD Grade A officer, and he will be giving you and telling you all the key insights at what exactly are the different points that you are really required to focus on when you are preparing for these regulatory bodies exams. So, let's start the session with a brief introduction about Mr. Abhinav. So I had done my BTech in Information Technology from Kalinga University in the year 2017. After that, I had joined Accenture, uh, and in Accenture, I worked for around 4.5 years. And after that, I joined National Informatics Center, and I was working as an assistant when I cleared these NABARD exam. So I was looking for this. I was looking for government job for a long time. It's like after 2020, I was looking for government jobs. I was giving exams, and currently I have cleared two exams: NABARD Grade A and uh, Assistant Director in Information Technology post in Ministry of Information Technology. So very glad to hear that. So, Mr. Abhinav, as you mentioned that as you were basically working for the past 4.5 years, so how did basically NABARD happen? When did you decided to shift from that private sector to these regulatory bodies exams? So actually, when I was working in private sector, I was means like I was not able to handle the pressure that the work pressure that I was given there. So I was working with my client Axis Bank. So there was a lot of pressure in the banking sector of means client having as banking project. So I was not able to handle that. So I've tried looking for a government job. I wanted to. Mm, he was giving NABARD grade A exam. So he cleared, his name is Sachin Gupta. He's from my college only. So he was senior. He told me that you can give NABARD grade A exam. He first cleared LIC AO, and after that he moved to NABARD grade A. Currently he's in NABARD grade A in Mumbai office, head office. So he told me that you can give this exam NABARD grade A. So from him I got to know about this NABARD grade A, and then I started preparing for it. I took the course for from EduTap for the NABARD grade A because for clearing that, because I was not good in QRE in start, because just started preparing for the government exam. So to the QRE is an essential part, because we have to qualify some there is some marks, means like you have to qualify that in phase one. So I took the course from EduTap, and after that अ, अम, वहीं से मतलब तैयारी शुरू की मैंने, मतलब 2020 के अराउंड नाबार्ड का मुझे पता चला। नाबार्ड मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे, लेकिन बहुत सारे क्लियर नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने कोर्स लिया, फिर उसमें क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश का, और फिर ये सब का तैयारी किया। फिर फेज वन क्लियर हुआ, लेकिन उस साल जब मैंने नाबार्ड दिया तो उस साल क्लियर नहीं हुआ। फिर उसके नेक्स्ट ईयर जब मैंने नाबार्ड दिया, तो अभी इस साल क्लियर हो गया। So जैसा कि आपने मेंशन किया कि यू ऑलरेडी वर हैविंग बेसिकली अनदर अटेम्प्ट्स एज वेल, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था नाबार्ड का। सो सेकंड। सेकेंड अटेम्प्ट था ये आपका नाबार्ड का। सो व्हाट वर द डिफरेंट लर्निंग्स दैट यू टुक फ्रॉम योर प्रीवियस अटेम्प्ट्स दैट हेल्प्ड यू इन क्लियरिंग द नाबार्ड ग्रेड ऑफिसर एग्जाम दिस ईयर? फर्स्ट अटेम्प्ट में ना सबसे बड़ा मेरा इशू आया था, वो जो मेरा डिस्क्रिप्टिव का था, उसमें मैं लिख नहीं पाया था सही से। मैं इंग्लिश लिख रहा था तो फिर वो स्पेस डाल रहा था, नेक्स्ट लाइन में चला जा रहा था। फिर वो करेक्ट करने में, तो वो वाला इशू था, वो मेरा मेन इशू था। उसके कारण मुझे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में बहुत कम मार्क्स आए थे जब फर्स्ट टाइम दिया था। तो क्योंकि लिखा मैंने सही था, लेकिन वो कुछ उसका जो प्लेटफॉर्म था वो बहुत इशू दे रहा था, तो वो मेरे फैमिलियर नहीं था, तो उस कारण से मेरे उस बार कम मार्क्स आए थे। तो वो एक मैंने उसको इस बार सही किया, और उसके बीच में मैंने सेबी के भी बहुत सारे एग्जाम, मतलब 2 बार एग्जाम दे दिए थे। तो मुझे आइडिया लग गया था कि प्लेटफॉर्म कैसा बिहेव करता है, क्योंकि सेबी में भी सेम प्लेटफॉर्म है। तो फिर वो मैंने वो एक मेरे यहाँ पे मार्क्स पड़े। सेकेंडली, वो जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था उसमें भी वही प्लेटफॉर्म रहता है, जो एक तो इंग्लिश वाला रहता है जिसमें ऐसे प्रेस और ये लिखना रहता है, और एक
50 मार्क्स का और एक डिस्क्रिप्टिव रहता, तो उसमें भी मुझे कम मार्क्स आए थे। तो वहां पे मैंने इस बार मार्क्स थोड़े से बढ़ाए, तो इस बार मेरा वहां पे ये क्लियर हुआ। नॉलेज वाइज मेरे को मतलब इशू नहीं हुआ था, इशू हुआ था ये इसी में, मार्क्स कम थे मेरे मेंस में। इंटरव्यू में मैंने पिछली बार इंग्लिश में इंटरव्यू दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड टर्म अटेम्प्ट में मैंने हिंदी में दिया। तो ये दो चेंजेस मैंने मतलब किए थे सेकंड अटेम्प्ट में। सो गाइस, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये जो हमें सीखनी चाहिए मिस्टर अभिनव से, कि ऑलवेज प्ले बाय योर स्ट्रेंथ, और जो भी आपकी वीकनेसेस हैं यू आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस एंड कन्वर्ट देम इनटू योर स्ट्रेंथ, एंड ही हैज रियली डन इट, एंड वी all can see that he has become the NABARD grade A officer. So Mr. Abhinav, as you mentioned that you were working since past 4.5 years, so as you were a working aspirant, so there is a very common query among all the working aspirants, that is basically the time management. So how can people basically manage the time as well as work when you are preparing for the such kind of exam? हम टाइम के लिए मैंने क्या किया था ना, मैं वीकेंड में मिनिमम 4 आवर्स पढ़ता ही था, मतलब हर सैटरडे और संडे को 4 आवर्स मैं पढ़ता था। उसी समय मतलब करंट अफेयर्स देख लिया, फिर क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश के वो क्विज बना लिए, तो वो करता था। और हर दिन मतलब हर दिन रात में 1 घंटे मतलब पढ़ता था ये कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स। जो क्यू क्वांट रीजनिंग इंग्लिश था वो मैं वीकेंड में पढ़ता था, और जो सब्जेक्टिव है, जो सब्जेक्ट का था मतलब जो स्ट्रीम का था, तो वो मैं मंडे टू फ्राइडे हर दिन 1 घंटे पढ़ता ही पढ़ता था। मैं एक्चुअली गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था शुरू में, तो वो गेट का जो नॉलेज था वो मुझे यहाँ पे यूज आया। नाबार्ड के जो फेज 2 के जो पेपर 2 होते हैं, ये इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव छोड़ के, वो वाले क्लियर करने में बहुत हेल्प आया। तो वो कर रहा था। टाइम मैनेजमेंट में क्या है ना कि आपको निकालना पड़ेगा समय, क्योंकि प्राइवेट में बहुत काम रहता है। मतलब अगर आप वर्किंग कहीं पे भी काम कर रहे हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, अगर काम कर रहे हो और आप साथ में एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और मैं मेरे को तो मतलब कि जब रहता था तो मैं वही 1 घंटा किसी भी हाल में निकालना ही निकालना है। हर दिन 1 घंटा मैं पढ़ता ही पढ़ता था किसी तरह से कि ये करना है। तो वो सब्जेक्ट वाला जो था मैं वो मंडे टू फ्राइडे करता था, और वीकेंड में मैं 4 4 घंटे वो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और उसके मॉक्स लगाता था। क्योंकि मैं पढ़ लिया था, जब कोरोना के टाइम में मुझे मिला था समय, तो मैं पढ़ लिया था क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के सारे एडू टैब के वीडियोस देख लिए थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे ना क्यूआरई को, तो फिर आप भूल जाओगे। तो वो प्रैक्टिस नहीं छूटे इसके लिए मैं सैटरडे और संडे को बनाते रहता हूँ बीच बीच में, ताकि वो छूटे नहीं। मतलब वो आपको अगर वो अ, आपने 1 साल पढ़ लिया, वीडियो देख लिया, बना लिया, क्वांटिटी पूरा कर लिया, लेकिन अगर आप 1 साल बाद फिर वो करोगे तो आपको वो जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं और वो सब वो आप भूल जाओगे। तो उसको ये करते रहेंगे प्रैक्टिस, तो फिर आपका वो टच में रहेगा। तो मैं वो उसके लिए वो ये करता था। मेरे को मेन इशू मतलब क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में ये था ना कि शॉर्ट ट्रिक्स ये सब पहले मुझे नहीं आता था, तो क्लियर नहीं होता था। उसके बाद मैंने जब वीडियोस देखे तो उसमें शॉर्ट ट्रिक्स और ये सब थे, तो उसको वो मुझे बहुत हेल्प करता है। क्योंकि वहां पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कॉन्सेंट्रेट इंग्लिश बनाते हो, पॉइंट मतलब कम टाइम में करना रहता है, तो वो चीज के लिए आपके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस इज द की, मतलब कि आपको करना पड़ेगा तभी आपका इसमें टचअप रहेगा। Exactly, just information and knowledge को acquire करना is not sufficient when we talk about clearing these particular sections in these regulatory bodies exams. You are always required to practice whatever you are, the knowledge you are gaining. Practice is very important basically. उनको कैसे बेसिकली अप्लाई करना है आपको कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम के अंदर, और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहेगी तो यू बिकम हैबिचुअल ऑफ सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. करेक्ट। सो जैसे कि आपने कहा दैट इट्स बीइंग अ लॉन्ग जर्नी फॉर यू, because you basically started a preparation around COVID times. So what exactly were the different hardships that you must have faced during those tough times when you were preparing for these exams? सबसे फर्स्ट तो सर वो टाइम मैनेजमेंट ही रहता है। एक्चुअली वो टाइम निकालना, जब आप प्राइवेट जॉब में हो और टाइम निकालना बहुत टफ होता है, तो वो टाइम के लिए मैंने वही मैनेजमेंट के लिए मैंने वही किया था कि 1 घंटे मैंने बना लिया था कि पढ़ना ही पढ़ना है एनी हाउ। मतलब 1 घंटे कम सोना पड़े चलेगा, लेकिन 1 घंटा तो करना ही पड़ेगा। तो वो मैंने 1 घंटे डेली मतलब किया। आपको लगेगा कि 1 घंटे से कैसे होगा या फिर कम समय है, लेकिन वो है ना, एक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो वो आपको 1 साल में नहीं होगा, हो सकता है 2 साल में हो नहीं हो, लेकिन मतलब एक समय के बाद फिर आपका जैसे ही
कोर्स कंप्लीट हो जाएगा या फिर हो जाएगा, उसके बाद होने लगता है। तो वो चीज़ था, तो मैंने वो किया। सेकेंडली एक हार्डशिप होता है कि आपको मतलब कि मुझे आइडिया, मतलब कि कोई होना, कुछ आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे कौन से एग्जाम्स दे हो रहे हैं आईटी सेक्टर से के, या फिर कहाँ पे कौन से कोर्स अच्छे हैं कौन से। तो वो चीज़ था, तो वो मेरे सीनियर थे एक भैया, तो वो उन्होंने सुमित गुप्ता, उन्होंने गाइड कर दिया था। तो कि आप ये कोर्स लो, आप ये एग्जाम, ये सारे एग्जाम दे सकते हो। तो वो एक होता है गाइडेंस का कि कौन से एग्जाम, क्योंकि आईटी सेक्टर में बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि नाबार्ड में आईटी का एग्जाम होता है, मतलब बहुत लोगों को पता ही नहीं है। और सेकेंडली ये वाला मुझे लगता है कंपैरेटिवली बहुत इजी है क्लियर करना, मतलब अगर किसी ने थोड़ा भी मतलब इसमें अपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई की है, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी हमें डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है, बस हम पेन से लिखते हैं यहाँ पे, वो कीबोर्ड से लिखना रहता है। तो जो तुरंत पढ़ के निकले हुए हैं बच्चे, अगर वो एग्जाम दे तो उनके लिए क्लियर करना आसान हो जाता है। तो ये था मेरा कि क्योंकि मैंने 4 साल पहले पढ़ा हुआ था, तो वो भी एक तरह से मेरे लिए इशू था कि वो सब याद करना वापस से कि क्या क्या पढ़ा है। तो वो चीज मेरे को टाइम, क्योंकि बहुत गैप हो चुका था, तो वो चीज था। तो मैंने वो पढ़ाई की, जो कॉलेज के नोट्स थे वो उल्टाए। तो वो एक मुझे प्रॉब्लम आई थी मेरी जर्नी में कि बहुत पुराने हो गए थे, तो सारे नोट्स पढ़ने पड़े, पढ़ा उस। तो और यही 3 पॉइंट थे। पहला तो कि अब पता नहीं चलता कि कौन से एग्जाम में कौन से नहीं, तो वहाँ पे गाइडेंस की वो आती है। सेकेंडरी नोट्स बहुत मतलब पहले पढ़े थे, कॉलेज से छूट गया था। बस यही था सर, मतलब इतने यही 2-3 हार्डशिप्स थे। सो काफी जरूरी है इन हार्डशिप से निकलना, एंड यू बेसिकली मैनेज वेरी स्मार्टली इन कमिंग आउट ऑफ दोस पर्टिकुलर काइंड ऑफ हार्डशिप्स. So guys, now let's discuss what exactly you are waiting for since long. That is basically the preparation for the phase 1, phase 2, and phase 3 of this NABARD grade A exam. So let's start with the phase 1 of the exam, which is having total of 8 sections, in which 5 are qualifying and 3 are merit based sections. So, Mr. Abhinav, let's start with the 5 qualifying sections. That what exactly your strategy was for these sections, and कैसे आपने इन 5 sections के लिए preparation किया, and what exactly were the different sources that you referred to for them? फेज 1 के लिए ना, मैंने सबसे इसमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, इसमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज 1 के लिए, फेज 1 में क्या होता है कि दो होता है, एक मेरिट सेक्शन, एक क्वालिफाइंग सेक्शन। तो और टाइम जो होता है कंपोजिट होता है। तो फिर हमें क्या करना है ना कि जो फेज 1 में है, जो क्वालिफाइंग है, उस पर ज्यादा टाइम नहीं देना है। तो मैंने क्या किया था, फेज 1 के लिए सबसे पहले कट ऑफ देखा पिछले ईयर का, कि कट ऑफ क्या है। वो कट ऑफ देख लिया कि हाँ इतने इतने नंबर चाहिए। और मेरे मतलब मैं जब इतना टेस्ट सीरीज देते रहता हूँ, मैं जैसे मैंने पता वीकेंड में दे रहा था, तो मुझे पता है कि मेरी एक्यूरेसी क्या है। तो आप अपना, अगर बहुत सारे आप वीकेंड में देते रहोगे एग्जाम, या बहुत टेस्ट सीरीज लगा लोगे, तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगी आपकी एक्यूरेसी क्या है। सपोज आपकी एक्यूरेसी 80% है, तो फिर आप ये कर सकते हो कि आप जो जितनी भी कट ऑफ है उसके आप जैसे सपोज 4 नंबर कट ऑफ है, क्योंकि कट ऑफ ऐसे रहते हैं 4 नंबर 6 नंबर, जो कुछ कुछ के इंग्लिश के जैसे 12 नंबर ऐसे कुछ है। तो फिर वो आप देख लीजिए, उसके बाद उसके हिसाब से आप अपने अटेम्प्ट कीजिए। और एक्यूरेसी आपको पता होनी चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। तो इंग्लिश में जैसे मैंने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए थे, क्योंकि इंग्लिश में कभी कभी पता नहीं रहता है क्योंकि क्या गलत हो गया क्या सही। लेकिन बाकी जैसे पॉइंट्स है, क्योंकि आपने उसको सॉल्व किया तो आपको पता है कि ये सही होगा। तो ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है कि अब क्वालिफाइंग मार्क्स 5 नंबर है और मैं कम अटेम्प्ट कर रहा हूँ 20 के 20 क्वेश्चन है क्वांट्स के, तो ये नहीं करना। तो मैंने ये नहीं किया था। मैंने और एक यूज किया था कि क्वांट्स में मैंने कोई भी पजल्स में नहीं गया, रीजनिंग में कोई पजल्स में नहीं गया, क्योंकि सिंगल सॉल्व पजल्स अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो उसमें समय बर्बाद हो जाता है। और अगर हो जाते तो ऑब्वियसली आपको 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर आपके वहां समय बर्बाद हो जाता है। तो मैं पजल्स में जल्दी नहीं जाता हूँ। जो सिंगल क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी में से हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो सिंगल क्वेश्चन इजी होता है मेरे लिए करना। तो मैंने सिंगल क्वेश्चन वाले पे गया, एक्यूरेसी अच्छी रखी थी, तो सिर्फ उतने अटेम्प्ट्स किए जितने काफी हो क्वालिफाई करने के लिए। मेरिट सेक्शन में जो जन जीके और एआरडी और ईएसआई का था, उसके लिए मैंने एडुटैप का नोट्स देखा था एग्जाम से पहले। मतलब इसमें आईटी में ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, तो उतना टफ नहीं है क्लियर करना ईएसआई एआरडी। मतलब आप जो नोट्स है वो एनफ है। एडुटैप के जो नोट्स है बहुत एनफ है। जो स्टैटिक्स जो आते हैं एआरडी में, कि जैसे फ्लावर की स्टडी को क्या बोलते हैं, कुछ कुछ मतलब इस तरह के आते हैं, तो वो सब जो है आपको बस एक बार पढ़ लेंगे नोट्स,
तो आपको याद रहेगा दिमाग में, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे क्लिक करेगा तो आप वो टिक कर दोगे। तो वो चीज था, मैंने बस नोट्स पढ़ लिए थे। जीके वाले मैं पढ़ते रहता था, तो वो 3 महीना तक पहले का मैंने पढ़ा था, 3 महीना लास्ट 3 मंथ्स का ही देखा था जीके। तो जीके वाला इस बार तो, क्योंकि स्टैटिक से बहुत कम आए थे, करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चन थे। तो क्योंकि 3 महीने तक मैंने पढ़ा था, जो भी मतलब ये था सफिशिएंट था, मतलब कट ऑफ क्लियर करने के लिए आईटी स्ट्रीम से, जनरल स्ट्रीम से नहीं। You mean the current affairs magazine that we are providing to you in the course? हाँ हाँ, जो मंथली वाला था वो मैंने पीडीएफ पढ़ा था लास्ट 3 मंथ्स का, वो पूरा एक एक लाइन मतलब वो पेन से अंडरलाइन करके, मतलब कि क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं उससे, एक्चुअली में क्वेश्चंस मतलब आप जो जब जाओगे पेपर देने के लिए, तो आपको मतलब अच्छे खासे क्वेश्चंस मतलब उससे कर जाएंगे। आपको हमेशा ये अटेम्प्ट नहीं करना है कि आपको 100 में मतलब कट ऑफ क्लियर करना है। फेज 1 के मार्क्स जुड़ाते नहीं है, जुड़ते नहीं है मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में। फेज 1 इज अ क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग नेचर के होता है। और जो इसमें ये होता है मेरिट, जो फेज 1 का जो मेरिट लिस्ट बनता है उसके लिए भी सिर्फ 3 ही सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, जीके, एआरडी एंड ईएसआई। तो ये 3 में आपको क्या करना है कि आप जो स्टैटिक नोट्स हैं, जो नोट्स हैं मतलब एडोटैप के, वो एनफ है क्लियर करने के लिए। जीके वाला क्योंकि इस बार मैंने देखा पिछले के पिछले साल नहीं था इतना करंट अफेयर्स, इस साल करंट अफेयर्स ज्यादा थे। तो करंट अफेयर्स आप लास्ट 3 मंथ्स के 6 मंथ तक जा सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने देखा कि 3 मंथ से पहले भी थे, तो लास्ट 6 मंथ तक जा सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से वो एनफ है आईटी स्ट्रीम में कट ऑफ क्लियर करने के लिए। जनरल स्ट्रीम का नहीं बोल सकता, जनरल स्ट्रीम में कट ऑफ हाई जाते हैं, लेकिन आईटी स्ट्रीम के लिए एनफ ओके। सो जब हम बात करते हैं मेरिट बेस्ड सेक्शंस की, तो एक काफी कॉमन क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का कि सर इतना सारा फैक्ट्स एंड फिगर्स है, डेटा है, दैट वी आर रियली रिक्वायर्ड टू रिटेन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो उस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया आपने? हाउ वर यू बेसिकली, हाउ यू मैनेज टू रिटेन ऑल दोज हैवी facts and figures and data which are really required to remember from the exam point of view? मैं जो फैक्ट्स और रहते हैं ना पॉइंट्स, वो सबको थोड़ा थोड़ा लिख लेता हूँ। मेरे को एक्चुअली लिखने से थोड़ा वो दिमाग में रहता है, कुछ भी लिख देता हूँ तो वो मेरे दिमाग में रहता है। और मैं जब एग्जाम आता है ना, तो वहाँ पे जब 4 ऑप्शन रहेंगे ना, अगर आपने वो पढ़ा भी हुआ होगा ना, तो वो क्लिक कर जाएगा कि ये 4 में से कौन सा है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, आई डोंट नो मीन्स लाइक अदर्स के साथ नंबर्स में होता है, कभी कभी इशू हो जाए। लेकिन अगर जैसे कुछ कैपिटल है या कुछ भी मतलब कि रिलेटेड टू कोई नाम है, तो आप आपने अगर पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि अगर आपको बस एक बार, क्योंकि वो आप रीडिंग भी लगा दोगे ना, जो मंथली अफेयर देती है एडुटैप मंथली वाला, अगर आप रीडिंग भी लगा दोगे, आपने पढ़ लिया कि ये नाम है, अगर वो आपको दिमाग में रहेगा। लेकिन आप 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, लेकिन वो रहता है दिमाग में। आप जब जाओगे वहां पे, नंबर से याद करने में मुझे भी इशू होते हैं। जैसे मुझे नाबार्ड में जब इंटरव्यू पे था, तो मुझे मतलब कि याद करना था कि उसका नाबार्ड का क्या क्या मतलब कि बैलेंस शीट है, ये वो तो याद नहीं रहता कभी कभी। तो वो चीज है, तो वो लिख के प्रैक्टिस करना होगा, आपको लिखना पड़ेगा। आप जैसे 3 बार 4 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो वो लिख के मैं करता था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो फिगर्स है। अब करंट अफेयर्स में उतना आप लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स तो मतलब उसके तो कोई लिमिट ही नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है कि आप लिख नहीं सकते, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पढ़ लेता हूँ 2-3 बार। वो पढ़ने के बाद ना, वो फिगर जो 5 ऑप्शन रहते हैं उसमें ना, कोई एक आपको लग जाएगा कि हाँ यही फिगर था, मैथमेटिकल वाला। लेकिन वो मैं कम अटेम्प्ट करता हूँ मैथमेटिकल, अगर बहुत डाउटफुल रहता तो मैं नहीं करता, क्योंकि मैं नेगेटिव मार्किंग से डरता हूँ थोड़ा। तो मैं अगर बहुत ज्यादा डाउटफुल रहता है या फिर एकदम याद नहीं आ रहा तो नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा श्योर हूँ। लेकिन अगर कोई नाम वाला से रिलेटेड है, जैसे कि डैम कौन सा कहाँ पे है, या फिर कुछ भी जनरल, ये G20 मीटिंग कहाँ हुई थी, ये सब, तो ये सब अगर आप पढ़ लोगे एक बार ना एडुटैप के मंथली अफेयर्स, तो आपको याद रहेगा। तो वो सब मैं क्लिक कर लेता हूँ। नंबर्स में मुझे भी इशू आती है, नंबर्स वाले में थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो वो करंट अफेयर्स में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन नाम वाले में मैं कर लेता हूँ। So when I talk about these current affairs, as you have mentioned, कि if you are having that kind of weakness कि मुझे याद नहीं रह पाता, so in that case what people can do, they can just write, they can just make their own notes for the same, so that बार बार उसको revise करेंगे, then they can very easily retain that particular Ex- information. यस, मैं पढ़ लेता था और लिखता था, वो मैथमेटिकल फिगर्स वाले सब लिख के, लिखने से जल्दी याद होता है। मैं लिख के मतलब 3 बार लिख लिया ना, जैसे इंटरव्यू से पहले मैं जो फैक्ट्स थे और जो इम्पोर्टेंट थे वो लिखा था बहुत। क्योंकि लिखने से ना क्या होता है कि वो आपके रहता है दिमाग में, कुछ भी है तो फिर वो रहेगा, ज्यादा ज्यादा देर तक रहता है। तो वो लिख के मैं प्रैक्टिस करता था, मतलब जो याद करना है, जो फिगर्स है वो सब, क्योंकि फिगर्स के लिए तो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, लिख के भी ना मेरे से नहीं होता है।
सो ESI और ARD की अगर हम बात करते हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स फॉर दीज टू सेक्शंस स्पेशली? रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स ना, मैं वो से बहुत क्वेश्चंस आते हैं रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स से। और रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स मैंने ना एडुटैप का ही वो पढ़ा था, एडुटैप के ही जो नोट्स थे उसी से पढ़ा था, जो इम्पोर्टेंट थे वो सब। उसके लिए एक अलग से लिख लिया था कि ये रिपोर्ट्स हैं, ये स्कीम्स हैं, वो सब लिख करके वही पढ़ा था। बस वही एग्जाम में चला गया था पढ़ के। तो उसको लिख के रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स के लिए भी एक PDF आती है एडुटैप की, वो वही इंपॉर्टेंट है। उसको उसको करने से ये VSIRD में बहुत हेल्प मिलेगा। सफिशिएंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? यस यस, मैंने सिर्फ एडुटैप का ही कोर्स लिया था, मतलब वो बहुत सफिशिएंट था, मोर देन सफिशिएंट है। IT के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है, मतलब बहुत ही मतलब। मेन मुझे जो एडुटैप का बहुत हाईलाइटिंग, मतलब मेरे लिए जो हेल्पफुल रहा वो क्यूआरी था, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव था जो ऐसे वाला था वो। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो बहुत मार्क्स नहीं आते, फिर सेकंड टाइम में मैंने फॉर्डर मटेरियल पूरा पढ़ा। वो फॉर्डर मटेरियल पढ़ने से क्या हो गया ना कि जो आप पढ़ेंगे, जो पॉइंट्स रहेंगे ना, वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो वहाँ पे एग्जाम के टाइम पे। तो वो बहुत हेल्पफुल था मेरा। फिर सबसे जो हेल्पफुल था वो था जो मंथली PDFs थे करंट अफेयर्स के, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो अगर आप पढ़ लोगे तो फिर आपका अच्छा खासा मार्क्स आएगा और आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे आराम से IT स्ट्रीम में। तो वो चीज़ है। So good to hear that. Our team will really be very happy to hear these words from your end. So अगर हम बात करते हैं phase 1 की, so what exactly was the strategy to attempt the phase 1 exam? So there are 8 sections और कोई sectional timing नहीं है, but there are sectional cutoffs. So सभी sectional cutoffs clear करनी है और साथ साथ overall cutoff भी clear करनी है। तो क्या आपकी preference थी? क्या आपका higher scoring area था when I talk about the phase 1 exam? कट ऑफ, ये सबसे पहले फेज 1 क्लियर करने के लिए क्या करना है ना कि सबसे पहले हमें देखना है कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, सेक्शनल कट ऑफ। वो हर साल लगभग उसी के आसपास रहता है। ठीक है, तो मैं देखा कट ऑफ क्या है, तो उस हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया कि इंग्लिश में सपोज 12 नंबर है तो मैंने 16 अटेम्प्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा काफी एनफ है। क्वांट्स में अगर 10 नंबर है तो 15 करिए। वो डिपेंड करता है कि आपका एक्यूरेसी क्या है। तो आपकी एक्यूरेसी अगर अच्छी नहीं है तो फिर आप, जैसे क्वांट्स में क्या है ना कि आपने अगर सॉल्व किया है तो फिर वो आंसर निकलेगा, ऑप्शन में दिखेगा, तो वो आप समझ सकते हो कि ये करेक्ट है। सॉरी। तो फिर वही चीज है, तो फिर मैंने वो पहले कट ऑफ देखा कि लास्ट ईयर के कट ऑफ क्या है, उसके हिसाब से मार्क्स, सॉरी अटेम्प्ट किए। ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है जो नॉन मेरिट सेक्शन है, और जो मेरिट सेक्शन है उसको जितने मैक्सिमम कर सकते हैं अटेम्प्ट वो कीजिए। सॉरी, सॉरी। तो मैक्सिमम जो है ना वो आपने पहले सबसे पहले कट ऑफ को देख के एनालाइज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो वही किया था, क्योंकि जो लोग कट ऑफ नहीं देखते हैं वो क्या करेंगे, नॉन मेरिट सेक्शन में बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर देंगे या फिर ओवर अटेम्प्ट कर देंगे। वो नहीं करना है। जो जो कट ऑफ है सिर्फ उतना बनाइए, उसके बाद मेरिट सेक्शन में जाइए। मेरिट सेक्शन में जितने ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना कीजिए, जो सही है। तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि नेगेटिव होती है वो सही नहीं होता है। तो मैंने वही किया था। मैंने जितने मतलब कि जो नॉन मेरिट सेक्शन थे उसमें सारे जो कट ऑफ देख लिए थे कि इतने इतने करना। मैंने तो मतलब कि पहले ही सोच के रखा था कि इतना इतने इतने अटेम्प्ट करूंगा, और फिर वो किया। उसके बाद नॉन मेरिट, ये मेरिट सेक्शन में गया। मेरिट सेक्शन में जो मैंने मंथली वाले जो पढ़े थे वो सबसे जो जो मैथ्स किए जो आते थे वो सब अटेम्प्ट किए। उसके बाद ये फेज 1 एनफ है, मतलब इतना करना एनफ है। लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। So basically, students are required to have a balanced approach for both the merit as well as non-merit sections. Merit करेक्ट। sections को अच्छे से प्रिपेयर करना है और अच्छे से अटेम्प्ट करना है। नॉन मेरिट sections में ओवर अटेम्प्ट नहीं करना, ज्यादा टाइम वहां पर वेस्ट नहीं स्पेंड नहीं करना करना। है। करेक्ट। एग्जैक्टली। सो गाइज आई रियली बिलीव कि आप सभी की जो भी क्वेरीज हैं अबाउट द फेज 1, दे हैव वेरी ब्यूटीफुली बीइंग क्लियर्ड बाय मिस्टर अभिनव हियर। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फेज 2 of this exam, and in which we are basically having the two sections. First one is basically your general English, and the second section is your the specialized subject. As in your case, it was computer and information technology. सो जनरलाइज सब्जेक्ट में, सॉरी, ये जो जनरल इंग्लिश का था उसमें मैंने ऐसे, प्रेसी और लेटर था।
तो उसके लिए मैंने एडोटैप का वही वीडियोस देखा था। एडोटैप के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, सॉरी, जो इसके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो सभी में आता है, इसमें था, मतलब ये वीडियोस में देखा था। तो प्रिसाइज राइटिंग, एसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग, यस। तो इसमें मैंने फॉर्डर मटेरियल जो था वो ऐसे के लिए पढ़ लीजिए, उसको बहुत एनफ है वो, मतलब उसको पढ़ सारे, अगर आप ऐसे एक बार पढ़ लेंगे कैसे लिखना है, वो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब जो वीडियोस बनाए गए हैं, मतलब सर ने वीडियोस डाले हुए हैं एडोटैप में, वो फॉलो करना है। फिर जैसे प्रेसियर टाइटल लिखना है, ये सब सब छोटे छोटे चीजें जो आपको वीडियोस में मिलेंगे, वो सब ध्यान रखना है, उस सब का नोट्स बना लीजिए कि ऐसे ऐसे लिखना है। फिर प्रेसी में क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, लेटर में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो ये सब चीज मैंने पहले बना लिया था। मैं लेटर, मतलब ये, मुझे लगता है ये जो मैंने अभी नबार्ड किया, ये मेरा पांचवा अटेम्प्ट होगा, मतलब एक तरह से होगा 5वीं बार मैंने ये सब लिखा होगा, क्योंकि सेबी का भी दे रहा हूँ, आरबीआई का भी दे रहा हूँ, तो बहुत बार दे चुका था, तो एक्सपीरियंस हो गया है। तो जो क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो आप एक बार बना लीजिए, और फॉर्डर मटेरियल पढ़ लीजिए। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना होगा कि जो जो ये है, कुछ कुछ लेटर है, कुछ कुछ मतलब जो दिए हुए हैं सैंपल, और ये सब थोड़ा सा पढ़ना होगा, उसको बनाइए, और उससे प्रैक्टिस जितना कीजिएगा इसमें उतना इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रैक्टिस करना। और सेकेंडली क्या है ना कि वो जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा नहीं है, मतलब मैं फर्स्ट टाइम जब दिया था मुझे बहुत इशू हो रहा था कीबोर्ड टाइप करने में, स्पेस दे के फिर आप एक स्पेस दोगे तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो ये सब कुछ इशू था, तो वो फर्स्ट टाइम मेरा इस कारण से, इस प्लेटफॉर्म से फैमिलियर नहीं था, उस कारण से मेरे मार्क्स कम आए थे। तो इस बार मैंने वहाँ पे अपने आप को सही किया, वहाँ पे मैंने इस बार मतलब अच्छे से लिखा। और आप अगर फॉर्डर मटेरियल पढ़ोगे ना, तो फिर क्या होगा कि आपके दिमाग में कुछ कुछ पॉइंट्स रहेंगे हमेशा से। तो वो पॉइंट्स जब आपके दिमाग में रहेगा ना, तो आपको आपको सोचने के लिए समय नहीं देना पड़ेगा। आपके पास 1 घंटे का 1.5 घंटे का समय रहता है, 1.5 आवर्स। तो मोर देन एनफ है, मतलब सेबी में तो 1 घंटे रहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रेंशन रहता है, फिर लेटर रहता है, प्रेसी रहता है, ऐसे रहता है सेबी में। वहाँ पे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का भी इशू रहता है, लेकिन यहाँ पे टाइम एनफ है। आप फॉर्डर मटेरियल से ये सब पढ़े रहोगे तो पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेंगे, लेटर कैसे लिखना है, तो उसमें आपको समय नहीं देना पड़ेगा कि लेटर लिखना कैसे, वो सब पे समय नहीं देना पड़ेगा। आप उस समय वो अगर पढ़े रहेंगे, रिवाइज किए रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो फिर आप वो समय आप यूज कर सकते हो यहाँ पे लिख, मतलब कीबोर्ड जो है वहाँ पे अच्छे से बना के लिखने में, क्योंकि यहाँ पे कीबोर्ड का मेरे चैलेंज सबसे ज्यादा रहता है, कीबोर्ड का जो इशू रहता है। तो वो मैंने फॉर्डर मटेरियल से ये सब पढ़े थे, प्रैक्टिस किया हुआ था, तो वो चीज मैंने यहाँ पे अपने आप को समय बचाया, सोचने की जगह मतलब यहाँ पे लिखने में अच्छे से लिखा। सेकेंडली जो पेपर था ऑब्जेक्टिव, और एक होता है डिस्क्रिप्टिव, कंप्यूटर साइंस का। तो ऑब्जेक्टिव मैंने तो गेट के जो सिलेबस पढ़े थे, जो कॉलेज के पढ़े थे, वो सब सारे नोट्स वो सब निकाले, वो सब पढ़े, वो पढ़ रहा था साथ में, क्योंकि मैंने और भी टेक्निकल एग्जाम दे रहा हूँ। तो वो बहुत हेल्पफुल मतलब रहा, वो उसको उससे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। मेरे ऑब्जेक्टिव में हर साल मतलब 8 मार्क्स अच्छे हैं, पिछले बार भी 50 में 38 आया था, इस साल भी उसी के आसपास है। तो वो इस बार मेरे, पिछले बार मेरे डिस्क्रिप्टिव में बहुत कम मार्क्स थे, डिस्क्रिप्टिव में मेरे सिर्फ 15 मार्क्स थे पिछले साल। जो क्योंकि वही बोला ना मैंने कि खराब लिखने में मतलब वो था, जो कीबोर्ड का इशू था। तो वो चीज इस बार मेरे डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छे मार्क्स थे। तो ये मैंने मतलब जो लिखने की प्रैक्टिस है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो जो मेरे गेट के सिलेबस के नोट्स थे वो मोर देन एनफ है, मतलब गेट के सिलेबस की से क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट, मतलब जो आप आईटी का सिलेबस देखोगे लगभग वही रहता है। और इसमें ऑप्शनल रहता है, तो आपने सारा सिलेबस, मतलब ऐसा नहीं है कि गेट से बाहर, गेट का पढ़ा तो आप एनफ है, क्योंकि गेट से बाहर हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए सपोज, क्योंकि इसके सिलेबस थोड़ी सी ज्यादा है, नबार्ड की जो आईटी स्ट्रीम की सिलेबस है थोड़ी ज्यादा है गेट से। लेकिन आपको ऑप्शन भी मिलता है 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। 3 3 6 रहते हैं, 6 में से 4 अटेम्प्ट करना रहता है, मतलब 15x2 और 10x2, और क्वेश्चन आपको 3 3 मिलेंगे दोनों। तो फिर मैंने वो जो क्वेश्चंस आपको अगर नहीं आता तो आप छोड़ सकते हो, जो गेट से रिलेटेड है तो वो आज मैक्सिमम आपके मैच कर जाएंगे। तो मेन है कि अटेम्प्ट करना है। अगर आपको थोड़ा भी आता है तो आप अपने वर्ड्स में लिख दो, जैसे कि सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आया है, तो ये आप लिख सकते हो, जो भी आपको जो भी आइडिया है आपको लिखना है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन की। आपको ने एकदम ब्लैंक छोड़ दिया तो 0 नंबर मिलेगा। तो आपने जो भी आता है वो लिख दीजिए, तो आपको मार्क्स मिलेगा, कुछ तो मिलेगा।
तो ये चीज है। लेकिन मैंने मतलब क्योंकि मेरे तो गेट सिलेबस से जो गेट के जो क्वेश्चन आए थे मैंने उसको अटेम्प्ट किया था पूरा, तो इस बार मेरे डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छे मार्क्स आए थे। तो इसके लिए प्रिपेयर मैंने जो इंग्लिश के लिए किया था वो प्रिपेयर किया था एडुटैप से। एडुटैप के सारे जो वीडियोस थे, जो कैसे लिखना है, ऐसे इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन, लेटर कैसे लिखा जाता है, प्रेसी कैसे लिखा जाता है, ये सब मैंने एडुटैप से देखा था और फॉर्मेटर पढ़ा था। और इसका प्रिपरेशन के लिए कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट वाला था, जो सारे टॉपिक्स दिए हुए थे नाबार्ड ने, उसमें से गेट के टॉपिक्स पढ़ के गया था बस, और गेट के टॉपिक से क्वेश्चंस आ गए थे। लकीली इस बार मतलब कि आउट ऑफ गेट एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो वो वाले जो सारे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए। और अगर लकी सपोज के गेट के आउटसाइड भी आता है क्वेश्चन, तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल रहता है, एक क्वेश्चन छोड़ना रहता है, तो आप छोड़ सकते हो। तो मेरे लिए गेट एनफ था, तो मैंने गेट के जो सिलेबस थे वो पढ़ के गया था, और मेरे लिए वो इजी था मतलब मार्क्स यहाँ पे स्कोर करना। सो काफी सारे डायमेंशंस आपने फेज टू की कवर की हैं, बट देर इज वन पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू आस्क हियर, दैट इज द वर्ड लिमिट. So did you touch the word limit in all the questions of the phase 2, or there was some difference? वर्ड लिमिट का ये रहता है ना सर कि वो एडुटैब में भी था कि वर्ड लिमिट जो है, आप प्लस माइनस 20 तक चल सकता है। मतलब जैसे 200 है, तो मैंने 200 नहीं था किसी का, मतलब मुझे याद नहीं कितने वर्ड लिमिट थे, लेकिन जो भी था -20 तक मैं चला जाता हूँ। अगर कुछ है तो कभी कभी +20 तक भी चला जाता हूँ, लेकिन उस बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंड नहीं करता हूँ। अगर हो रहा है तो फिर वो फिर एडिट करता हूँ, बीच से कहीं से एक कोई पॉइंट हटाया, वो किया। लेकिन ज्यादा अटेम्प्ट मतलब कि एक्सेस भी नहीं करता हूँ, कम भी नहीं करता हूँ, उसी लिमिट में +-20 तक चलता है। Okay. So guys, I really believe कि आप सभी की queries about the phase 2 exam, they have very beautifully answered by Mr. Abhinav here. And now let's move on to the phase 3, that is the interview stage for the NABARD grade A exam. So अगर हम interview stage की बात करते हैं, so what exactly were the different things you referred to for its preparation? क्या क्या material आपने उसके लिए पढ़ा, कैसे कैसे questions की preparation की for the interview part of the NABARD grade A officer exam? फेज 1 के जो सॉरी इंटरव्यू के जो पढ़ना था, तो इंटरव्यू में मैं फर्स्ट टाइम दिया था पिछले साल। तो उस साल मैंने सेम पैनल थे इस साल भी, पिछले साल भी गांधी सर थे, इस साल भी गांधी सर ही थे चेयरमैन, सेम पैनल था एग्जैक्ट। तो पिछले साल जब मैंने दिया था, तो पिछले साल मैंने इंग्लिश में दिया था, क्योंकि मुझे लगा हिंदी मतलब कि शायद सही रहेगा नहीं रहेगा, ये सब बहुत मतलब स्केप्टिकल था अपने भी। तो वो नहीं, इंग्लिश में दिया था मैंने। तो मुझे लगता है वहां पे सर ने मुझे जो क्वेश्चंस किए थे, पूछे थे, उसमें अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर तो वो मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाया उस पिछले ये साल अच्छे से। तो इस साल मैंने सोचा था कि नहीं, इस साल मैं हिंदी में दूंगा। तो और मैंने एडुटैप का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था उसमें भी इंटरव्यू दिया था, तो सर से पूछा भी था कि सर मतलब जो एडुटैप के जो इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने गाइड किया था मुझे कि आप हिंदी में देना, शुरू में इंट्रोडक्शन इंग्लिश में स्टार्ट करना, फिर धीरे धीरे हिंदी में स्विच कर जाना। तो मैंने वही किया था। तो मैंने किया, फिर उसके बाद हिंदी में स्विच कर गया, फिर वो लोग सर लोग भी हिंदी में क्वेश्चन पूछने लगे, तो फिर वहां पे मैं ज्यादा कंफर्टेबल लगा मेरे को कि मैं जो पूछ रही थी मैम और जो सर पूछ रहे थे, वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा था। जैसे मुझे पूछा था कि आपने क्या एक्सपीरियंस है, किस फील्ड में काम करते हैं, तो वहां पे आप ना एक मैंने जो नोट किया, आपने कभी ब्लफ नहीं करना है, कि आपने अगर नहीं किया है कुछ तो नहीं बोल देना कि मैंने ये किया है, ये किया है, वो क्या है, क्योंकि वो लोग क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं और वो लोग समझ सकते हैं कि समझ जाते हैं कि वो इसने ब्लफ किया कि नहीं किया। तो वो चीज नहीं करना है। मैंने कभी ब्लश नहीं किया वहां पे, मैंने जो एक्सपीरियंस था मैंने वो एग्जैक्टली बता पाया वहां पे। फिर उन्होंने आईटी से रिलेटेड जो है ना, आईटी स्ट्रीम में सिर्फ आईटी से रिलेटेड ही पूछते हैं। ये आपसे मतलब आईटी से रिलेटेड पूछेंगे कि एग्रीकल्चर में आईटी का क्या यूज हो सकता है, आईटी इनिशिएटिव्स ऑफ नबार्ड क्या क्या है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्रीकल्चर में क्या यूज है। तो ये सब जो है ना, वो 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वो आप मतलब कि वो पूछेंगे रहता है, मतलब कि क्या यूज हो सकता है। फिर ब्लॉकचेन का एग्रीकल्चर में मेरे से ये सब क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लॉकचेन एग्रीकल्चर का क्या यूज है, फिर आईटी इनिशिएटिव्स ऑफ नाबार्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस। सो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस थे, तो मैंने हिंदी में एक वो दिया था जो था वो आईटी इनिशिएटिव सब उसमें था, क्या नाम है, नबार्ड की जो एनुअल रिपोर्ट आती है उसमें था। तो वहां से मैंने ये सब पढ़ा था। तो आईटी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछेंगे आपको आईटी स्ट्रीम में इंटरव्यू में, तो मैंने वो प्रिपेयर किया था।
सो गाइज आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस, इफ यू आर बेसिकली अपियरिंग फ्रॉम द आईटी स्ट्रीम एंड आईटी स्पेशलिस्ट पोस्ट, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सो मिस्टर अभिनव, यहाँ पर आपने मेंशन किया दैट यू आल्सो अपीयर्ड फॉर द एडुटैप मॉक इंटरव्यू। सो हाउ वाज द हम्म। पैनल एंड हाउ डिड देयर फीडबैक हेल्प यू इन योर एक्चुअल इंटरव्यू फॉर द NABARD grade exam? Was that quite similar with the actual interview that you appeared in? Yes, yes. Actually, it was quite similar, and they एक्चुअली मेरे को वो स्केप्टिकल था कि मैं स्केप्टिकल था कि मैं इंग्लिश में दूं हिंदी में, तो मैं लास्ट मोमेंट तक डिसीजन नहीं मेक वो कर पा रहा था। तो वो डिसीजन लेने में मुझे हेल्प मिला था वहां पे। सर ने बोला कि नहीं, आप हिंदी में दो, आप हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हो, आप हिंदी में दो इंटरव्यू। तो वहां पे मुझे वो गाइडेंस मिला उस सर से कि आप हिंदी में देना। तो मैंने हिंदी में दिया कॉन्फिडेंस से, तो इस बार मेरा क्लियर हो गया है। तो वो चीज मुझे सबसे ज्यादा हेल्प मिला जो इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू का मतलब मॉक इंटरव्यू दिया। मॉक इंटरव्यू का सबसे बड़ा हेल्प क्या रहता है ना कि आपको पता चल जाता है कि आपका नॉलेज कैसा है, या फिर आप कहाँ तक कभी क्या आप तैयार हो कि नहीं हो, एक तरह से आपको आगे के लिए तैयार हो सकते हो। तो वो चीज मेरे को सर ने गाइड किया था इस मॉक इंटरव्यू में, तो वो बहुत हेल्पफुल था। और ये ऑलमोस्ट जो एक्चुअल इंटरव्यू है उसी के जैसा ही था। आईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, और आपको नाबार्ड से जो आईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। और जो एग्रीकल्चर से आईटी का रिलेटेड क्वेश्चन, आईटी मतलब एग्रीकल्चर का क्या यूज हो सकता है, ये सब क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे। Okay. So I really think, guys, that all your queries about the interview stage has very much clear to all of you. But I one thing that I would like to ask to you, Mr. Abhinav, that whatever your preparation levels are, but still at point a point comes that you are not able to answer that question. So what exactly a student is required to do in that situation? Does he is required to bluff, or he can guess, or he can just humbly say no to that particular question? Yeah, in my opinion, humbly saying no is the good option, because if you bluff, or that is, it's like they will there you will accrue negative marks if you bluff. If you don't know, you can just simply say no. If you know a little bit, then you can say that this much जो भी टॉपिक के बारे में आपको पता है, आप वो उतना बोल सकते हो। लेकिन आपने कुछ ब्लफ नहीं करना है कि आपको पता नहीं है और आपने बोल दिया, तो वहां पे हो सकता है नेगेटिव मार्क्स आ जाए आपको, मतलब कुछ मार्क्स काट लिए जाए। तो वो चीज नहीं करना, मैं नहीं करता ब्लफ, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे मार्क्स कटता है। और हम्बली से नहीं, सर आई आई विल रीड ऑन दैट, और आई कुड नॉट रिकॉल, तो ये सब आप बोल सकते हो, तो बेटर रहता है वो। आपसे दूसरे क्वेश्चन पूछ लेंगे। मेरे साथ भी हुआ था, दो क्वेश्चन कुछ मुझे नहीं आते थे, तो सर ने मैंने बोला कि सर आई कुड नॉट रिकॉल, तो सर ने फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, तो उस दैट इज नॉट एन इशू। Very nice. So, Mr. Abhinav, one last piece of advice for all the aspirants who are going to appear in the NABARD grade A exam this year. तो प्रिपेयर इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए ना आपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। फेज वन कैसे क्लियर करना है, फेज बाय फेज इन इन इसे डिवाइड करो प्रिपरेशन को। जो पहले फेज वन का प्रिपेयर करो, फिर फेज टू का, फिर इंटरव्यू का। तो पहले फेज वन में क्या करना है कि आपने स्मार्ट वर्क करना है। मैं जो क्वालिफाइंग सेक्शन है उसमें ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, जो मेरिट सेक्शन है उसमें अटेम्प्ट करना है। फेज टू में क्या करना है आपने कि जो फॉर्डर मटेरियल्स है वो पढ़ के जाइए, आपने वहाँ फॉर्डर मटेरियल से जो पॉइंट्स उठा करके वो रखना है, और सेम आपके समय बचेंगे जब आप टाइप करोगे। तो आईटी स्ट्रीम का अगर स्पेसिफिक है तो आप गेट सिलेबस पढ़ लो, वो बहुत मोर देन एनफ है क्लियर करने के लिए आईटी स्ट्रीम से, मतलब ये सेकंड पेपर। इंटरव्यू के लिए आपने अपने आप को कॉन्फिडेंस, वो सबसे मेन है, कॉन्फिडेंस रखना है। और सेकेंडली, आप जो जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप लैंग्वेज यूज करो, वो मार्क्स ने मैटर नहीं करता। क्योंकि मैंने हिंदी में दिया, मेरा क्लियर हो गया, तो मुझे अपने पहले मुझे लगता था कि हिंदी में दूंगा शायद मार्क्स कम आएंगे ये, लेकिन अब मुझे क्लियर हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप हिंदी में भी दे सकते हो। तो ये चीज है, अपने कॉन्फिडेंस रखना है, कंफर्टेबल रहना है जिसमें जिस लैंग्वेज में। थर्ड, कि आप मॉक इंटरव्यू दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो अभी। तो वो चीज है। और ये सब कुछ कुछ मैंने फेस वाइज बता दिया कि ये पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हो। Very nice. And one last question of this session to you, Mr. Abhinav, that how did EduTap help you in becoming the NABARD grade A officer? इट वॉज वेरी हेल्पफुल। मैंने मतलब जब मैं स्टार्ट किया था ना, तो मुझे वो नहीं मिल रहा था कि मैं क्यूआरई कहाँ से पढूं। सबसे मेन तो मेरे को वहां पे था। तो मुझे क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश मुझे एक जगह मिल गया,
और वो मुझे एडुटैप का जो कोर्स था वो मतलब सफिशिएंट है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का। मैं जो अभी जो टेक्निकल एग्जाम देता हूँ मिनिस्ट्रीज की भी, यूपीएससी की भी, जो आती है आईआईटी की, तो दे रहा था, अब तो नहीं दूंगा, लेकिन जो दे रहा था उसमें भी जो रीजनिंग के आते हैं टेक्निकल, नॉन टेक्निकल में, एप्टीट्यूड में, तो वहां पे भी वो करता है जो सर ने बताया है, जो शॉर्ट ट्रिक्स और ये सब, वो एक जगह पे मिल जाता है। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल था क्यूआरई का। तो और सेकेंडली आपको गाइडेंस मिल जाता है कि आपको किस हिसाब से करना है तैयारी। फिर एआरडी, ईएसआई और जो जीके था, उस जनरल अवेयरनेस, उसके लिए जो नोट्स है मंथली वाले, मैं वो पढ़ता था। वो म, मैं बोलूंगा कि सफिशिएंट है, मतलब आईटी स्ट्रीम से क्लियर करने के लिए वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल था नाबार्ड में, एडुटैप का ये जो था। तो ओवरऑल मेरे को मतलब कि एडुटैप की तरफ से हर तरह से हेल्प मिला, हर फेज में। इंटरव्यू का मॉक दिया, वहाँ पे सर ने जो गाइड किया वो बहुत हेल्पफुल था। तो फिर ऐसे में प्रेसी में कैसे लिखना है, वहाँ पे जो फॉर्डर मटेरियल थे एडुटैप के, वो सारे बहुत हेल्पफुल थे। तो हर फेज में मुझे हेल्प मिला एडुटैप से। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for these kind words, Mr. Abhinav. So, guys, today Mr. Abhinav has basically told you everything about all the key insights about his preparation strategies and the resources as well that he referred to for clearing the NABARD Grade A exam. And guys, we will keep on coming with such kind of success story sessions. And Mr. Abhinav, on the whole behalf of EduTap team, I would like to wish you all the best for your future endeavors. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। And thank you for joining the platform, for sharing your interesting journey of becoming the NABARD grade officer. थैंक यू। So, guys, we will be meeting up in the next session. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning.